Good morning, my dear friends and ladies and gentlemen. I welcome you all to the Prime Skills once again. I welcome you on the day 2. So first of all, I would like to congratulate you seriously from the bottom of my heart that you have actually completed day 0 and day 1. And I believe that before coming to this day 2, you have already completed the quiz which I have already shared with you in the description box of the group of the video 1, day 1. And also you have downloaded the flashcards and you have already listened to the podcast. Okay, so if you haven't done any of those things, make sure that you are actually taking care of all those things, because if you do not follow all the steps, please try to understand, you would not be able to get, or you will not be able to just get the maximum output of this video. Okay, so make sure that you are actually following all the steps. So on the day 2, again, we would be covering 10 new, most interesting, most beautiful words which will definitely add something to your vocabulary. Okay, so without taking much time, let's go ahead and let's start learning. So very important thing, first of all, as I've already said and as we already mentioned in the values of our Prime Skills, discipline is the architect of success. So if you really want to become successful in anything, discipline and consistency really matter a lot. So here we need to be disciplined about our schedule. We need to be disciplined about our very much, showing up every single day. Okay, so please go ahead and watch the video, listen to it completely, understand, and then let's start. So what a typical day look like, I have already shared with you, but again, if you really want to go forward, so let me just catch up things in a very quick way. 10 powerful words every day we would be sharing. Quizzes होंगे इसके अंदर, आपके फ्लैश कार्ड्स होंगे, आपके पॉडकास्ट होंगे जिससे कि आप उनको रिवाइज कर पाए, एंड देन देयर वुड बी अ होम टास्क असाइनमेंट. वो बेसिकली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी आपके कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालेंगे. दैट वुड बी the thing. And then apart from that, daily review of the last words, जो कि हम अपनी next वाली slide में देखने वाले हैं. And then there would be weekly reviews on the Sundays. 6 days के बाद आपका जो है एक 7th day, उसमें आप पूरे 6 days का जो भी आपने vocabulary learn की है उसको आप revise करेंगे. And then finally there would be a monthly competition. If you are really learning enough, if you are really learning with discipline and consistency, you are going to rock in this competition, and the competition will definitely fetch you some prizes. Okay, so let us go ahead and start today's vocabulary. So first of all, the recap of the day 1. Let me just tell you, yesterday we completed 10 words. इनको मैं बस एक शब्द में, एक लाइन में मैं आपको बताता चलता हूँ. एप का मतलब होता है किसी को कॉपी करना. डन का मतलब होता है किसी को बार बार परेशान करके और किसी की कोई चीज डिमांड करना. फॉप मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी मच कंसर्न एंड वेरी मच लाइक थिंकिंग अबाउट हिज ड्रेसेस, एंड जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सी ड्रेसेस पहनता है और अपने ड्रेसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो. गैड का मतलब होता है लाइक व्हेन यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर without any purpose. Hex means जब आप किसी को कर्स कर देते हैं. Ken का मतलब होता है the depth of your intellectual ability and knowledge. Pox means sharp या शापित कर देना. Tow का मतलब किसी चीज को खींचना जब आप गाड़ी को tow करते हैं. Vex मतलब किसी को परेशान करना, and V मतलब compete करना. So if you have watched the video of day 1, then you might have actually learned these words, and these words are very important. Try to utilize them in your communication, and definitely you will improve your vocabulary. So let's go to day 2 now. So what is day 2 all about? So day 2 is all about words about combining and separating. So in this day 2, we would be talking about 10 words which are actually used for combining and separating certain things. Okay, so our first word is amalgamation. Amalgamation एक noun है बच्चों, amalgamation, and yes, आपको यहाँ पे pronunciation भी दिया हुआ है, तो make sure कि आप pronunciation को भी practice करें. तो इस word को कैसे pronounce किया जाएगा? Amalgamation. Amalgamation. ये जो may है, this segment will be emphasized and the pressure will be put on this. So pronunciation के ये जो आपकी लिखा हुआ है यहाँ पे pronunciation, इसमें जो भी आपको bold segment दिखाई देगा, it means आपको उसके ऊपर थोड़ा सा emphasize करना है, right? Then what is the meaning of amalgamation? The action, process or result of combining and uniting one as a one unified whole. जब आप किसी चीज को एक साथ मिलाते हैं, right? जब आप किसी चीज को एक साथ मिलाते हैं, उसको मिलाने के बाद जो एक यूनिफाइड बल्क बन के आता है, that is basically called the amalgamation, right?
कल मैंने आपसे बोला भी था कि वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑल्सो। तो अगर ये आपका नाउन है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप इसको देखें तो इसको आप डिफरेंट अदर फॉर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। तो अदर फॉर्म्स में आपका एक तो वर्ब हो गया, दैट इज टू अमलगमेट। इफ यू अमलगमेट एनीथिंग इट मींस यू मिक्स एनीथिंग। एंड देन देयर इज अमलगम व्हिच इज आल्सो अ नाउन, राइट? सो अमलगम इज आल्सो अ नाउन, अमलगमेशन इज अ process, right? But this process is also a noun because it's an abstract noun, right? So let us go to the example again. What are the examples? So guys, once again I would like to tell you, मेरे examples होंगे, लेकिन आप अपने examples बना के आप जरूर अपने comment box में डालिएगा. Only then I would be able to know कि you are learning, right? So this book is nothing but, I'm sorry, yeah. So this book is nothing but an amalgamation of various editorial articles. यानी इस बुक में और कुछ नहीं है, केवल कुछ आर्टिकल्स को लेके उनको जोड़ दिया गया है और उसका अमलगम यहाँ पे बन गया है, right? In the same way, I tried to amalgamate the ideas of various experts scattered among the various texts and journals. Now, try to understand. यहाँ पे आपने amalgamate use किया है. So what is the meaning of amalgamate? I mean, like how exactly you're using? You are using it as a verb. ओके, तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह आपने यूज किया है और यहाँ पे आपने इसको नाउन की तरह यूज किया है. कैसे पता लगेगा कि ये नाउन है? अगर आप ध्यान से देखें तो इस अमलगमेशन से पहले एन लगा हुआ है, विच इज एन आर्टिकल. और ये जो आर्टिकल है, जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल हमेशा कहां पे यूज होता है बच्चों? आर्टिकल हमेशा एक नाउन या नाउन फ्रेज से पहले हम यूज करते हैं. So what can be the synonyms, guys? So synonyms can be merger and combination. Again I told you amalgamation है, so amalgamation के जो synonym होंगे वो हमेशा noun ही होंगे. So merger is also a noun. You cannot say कि merge is a synonym, okay? And then combination is also a noun. Now let us just talk about the word history. Word history और origin जो होता है वो आपको वर्ड को आपकी मेमोरी में थोड़ा सा पैक करने की कोशिश करता है. ये एक तरीके से लाइक वर्ड को ज्यादा दिन तक आपको याद रखने की कोशिश करता है. आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन, इफ यू रिमेंबर, कि जितने ज्यादा वर्ड्स के हाथ होंगे, राइट, जितने ज्यादा पंजे होंगे वो उतने अच्छे से आपकी मेमोरी को जकड़ेगा, राइट? सो दीज ऑल आर द हैंड्स, डिफरेंट हैंड्स. जितने ज्यादा फैक्टर्स आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप वर्ड को याद कर पाएंगे. And then so what is the history? This is an Arabic word. Arabic origin से आया है. Combining of metal with mercury. जब हम metal, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे आपने अमलगम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? मरकरी का एक अलॉय होता है, तो मरकरी को मिलाते हैं जब हम मेटल्स के साथ, तब हमारा अमलगम बनता है. तो अरब देशों से ये एक वर्ड आया है, इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं. इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे बच्चों, वो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से आपको आते हुए मिलेंगे. Now let us talk about the another word. So the second word is admixture, right? Admixture. Again, I'm emphasizing upon mix. Admixture. Okay? So admixture is a noun again. और इस noun का meaning क्या होता है? A mixture or the action of adding an ingredient to something else. जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को या एक ingredient को किसी दूसरी चीज में मिला रहे होते हैं, then it is called admixture. और इसे एक सिंपल ये जो प्रोसेस है ये भी आपका एडमिक्सचर हो सकता है, और जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है वो भी आपका एडमिक्सचर हो सकता है. दोनों में डिफरेंस है. पहले में जो पहला मिक्सचर है, दैट इज बेसिकली अ मटेरियल नाउन, एंड द सेकंड वुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? सो द प्रोसेस, second one will be the process, first one will be the material. Okay. So let's look at the example. The river was flowing with full gusto, inundating the entire city, and there was admixture of death, squalor and devastation all along. So now this is a very advanced example, you can see. So the river was flowing with full gusto, यानी पूरे फ्लो पे बह रही थी, and it was just inundating means like जैसे बाढ़ में डुबो देते हैं, right? Inundating the entire city, and there was admixture of death, squalor and devastation all along. So these three are the different words again. So next example is, his admixture of creativity and innovation will remain an example for centuries, right? So अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका admixture यूज हुआ है वो हमेशा दोनों केसेस में वो आपका नाउन की तरह ही आपका बेसिकली यूज हुआ है, right? So what can be the different synonyms? So synonyms can be blend and conflation. Blend and conflation. Again, I would like to mention this thing very clearly कि जो आपके synonyms होते हैं, those synonyms cannot be used directly until and unless the context is clear. At times synonyms का मतलब क्या होता है? समानार्थी word. अर्थ भले ही समान हो बट उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, तो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं आप मोस्ट ऑफ द केसेस में. कुछ केसेस में अगर आप रिप्लेस कर भी रहे हैं इट्स ओके, ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम केसेस में रिप्लेस कर रहे हैं देन योर मीनिंग विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड,
the sentence or the overall meaning of the sentence will be compromised. So make sure if you are utilizing a synonym, you try to check out its dictionary entry and you understand it where exactly it can be utilized. So that is very important. Now let us go to the third word, and third word is eclectic. Eclectic. Okay, again look at the pronunciation. क्लैक के ऊपर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना है. So that is eclectic. What is the meaning of eclectic? This is an adjective. Remember, adjectives are most beautiful words. Okay, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप adjectives अच्छे से जानते हैं, then your language is very much rich. So this is made up from a variety of sources. जब आपकी कोई चीज बहुत सारे sources से मिलके बनी होती है, right? तब आप eclectic यूज करते हैं. And then not following one style or set of ideas, but choosing from or using from a wide variety. इट मीन्स जब आप बहुत डिफरेंट वेराइटीज की चीजों में से कोई चीज यूज कर रहे हैं या फिर उनको चूज कर रहे हैं या उनको सेलेक्ट करके आप उनको ऐड कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इक्लेक्टिक. आप उसको वहां पे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी फॉर्म्स जो आपकी हो सकती हैं वो आपका इक्लेक्टिसिज्म भी हो सकता है. इक्लेक्टिसिज्म जब भी ISM लगता है तो वो आपका हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है कोई एक प्रथा या कोई एक बेसिकली पंथ. ठीक है, जो किसी चीज को फॉलो करता है वहां पे हम ISM लगा देते हैं जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, लाइक दैट. नाउ लेट अस जस्ट कम टू अनदर पार्ट, कोलोकेशन. ना कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम देखिए, हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो हमारी जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारा ना हिंदी को यूज करने का एक बेसिकली एक तरीका होता है जो लोकल होता है, राइट? उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता इंग्लिश में. इसी तरीके से जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते टाइम लोगों की तरह जो एक्चुअल में इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनकी तरह बोलने के लिए आपको कोलोकेशंस यूज करनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यावहारिक इंग्लिश में. इट मींस जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्वर्सेशन में अप्लाई करते हैं. तो कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं. ठीक है, सो यूज्ड विद वर्ड्स अप्रोच, बंच, कलेक्शन, मिक्स, मिक्सचर एंड टेस्ट. इसका मतलब क्या है? यानी आप जब भी इसको इक्लेक्टिक को यूज करेंगे तो इक्लेक्टिक को आप इन वर्ड्स के साथ यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच, आप बोल सकते हैं इक्लेक्टिक बंच, इक्लेक्टिक कलेक्शन, इक्लेक्टिक मिक्स और इक्लेक्टिक मिक्सचर और इक्लेक्टिक टेस्ट. ठीक है, तो ये जो कोलोकेशंस होती हैं ये आपको एक आइडिया देते हैं कि इस वर्ड को कहां पे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. ये थोड़ा सा नैरो डाउन करके हम इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं जिससे कि लैंग्वेज को और ज्यादा एनरिच किया जा सके. ठीक है, सो मेक श्योर आप ये जो आपकी कोलोकेशंस हैं इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें. सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, हिज इक्लेक्टिक अप्रोच वॉन हर्ट्स ऑफ एंटायर असेंबली. यानी उसकी जो इक्लेक्टिक अप्रोच थी, इक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब उसने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी. जैसे बोलते हैं ना गागर में सागर भर देना, तो इक्लेक्टिक बेसिकली उसी चीज के लिए यूज होता है. सो हिज इक्लेक्टिक अप्रोच, उसके गागर में सागर भरने वाली जो अप्रोच थी, उसने सबको वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया. A.R. रहमान इज म्यूजिशियन नोन फॉर हिज इक्लेक्टिसिज्म, राइट? यानी A.R. रहमान जो है वो एग्जॉटिक चीजें लेके आते हैं अपने म्यूजिक के अंदर. इटालियन म्यूजिक का भी लेके आएंगे और आपका डिफरेंट अदर म्यूजिक्स के भी जो पीसेस होंगे वो अपने म्यूजिक में वो ऐड करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इक्लेक्टिसिज्म. ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? डाइवर्स एंड वाइड रेंजिंग. डाइवर्स और वाइड रेंजिंग, इसके दो सिनोनिम्स हो सकते हैं. वर्ड हिस्ट्री क्या है? ये ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड में जो एक वर्ड होता है जो कि सेलेक्ट, जिसका मीनिंग होता है सेलेक्ट, तो वहां से ये इक्लेक्टिसिज्म बेसिकली इक्लेक्टिक जो है वहां से ये वर्ड आया है. सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ वर्ड व्हिच इज कैथोलिक. ओके, कैथोलिक आपको लग रहा होगा कि आपको पता है, बट एक्चुअली वो कैथोलिक नहीं है. एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. दिस कैथोलिक इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. ओके, सो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह ही इसको यूज करना है हमें. वो वर्ड और भी मीनिंग्स हो सकते हैं इसके, बट यहाँ पे हम बहुत ही पर्टिकुलर मीनिंग्स की बात कर रहे हैं जो हम जनरली यूज करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग? इंक्लूडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज. सो व्हाट आर द अदर फॉर्म्स? अदर फॉर्म्स कैन बी कैथोलिकली एंड कैथोलिकनेस. ओके, कैथोलिकली एंड कैथोलिकनेस. सो ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. कैथोलिकली इज एन एडवर्ब, उसको आप वर्ब से पहले वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज करेंगे. एंड कैथोलिकलनेस बेसिकली इज अ नाउन व्हिच इज अगेन नेस लग गया है, तो बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कोलोकेशंस, पॉइंट ऑफ व्यू, मास, बिलीफ एंड टेस्ट. इसका मतलब अगेन कैथोलिक आप यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव इन सब चीजों से पहले. फॉर एग्जांपल कैथोलिक पॉइंट ऑफ व्यू, कैथोलिक मास, कैथोलिक बिलीफ और कैथोलिक टेस्ट.
ये कॉलोकेशंस आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं. मेक श्योर यू ट्राई टू put them into consideration. Now let us just try to talk about the examples. As a young boy, he had more Catholic tastes than he does now. जब वो बच्चा था तो उस समय उसके टेस्ट जो थे वो मोर कैथलिक थे, यानी मोर वैरायटी ऑफ टेस्ट वो जो है रखता था, एक डाइवर्स टेस्ट वो रखता था. You are supposed to present Catholic point of views while speaking impromptu. When you are speaking impromptu or when you are actually participating in an impromptu speaking session, then you are supposed to put Catholic views. Catholic means diverse views. एक point के या एक ही topic के different point of views. Synonyms can be cosmopolitan and eclectic. Eclectic अभी हमने पढ़ा था, right? So ये दोनों आपके synonyms हो सकते हैं. And word history is it came from a French word for universal. फ्रेंच में जो एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल, वहां से आपका कैथलिक आया है. तो कैथलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब सभी लोगों को या सभी चीजों को इंक्लूड करने वाला. नाउ लेट अस गो टू अनदर वर्ड, एंड अनदर वर्ड इज मॉटली. अनदर वर्ड इज मॉटली. मॉटली को बेसिकली आप एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव एंड नाउन. जब आप एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? Made up of many different people or thing, composed of variety of sources, having many color. तो मोटली बेसिकली 3 जगह पे आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, जहां पे आप जो एक तो वो चीज जो या एक वो जगह जो बहुत सारे लोगों से या बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो, कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जो जिसमें कुछ चीजें वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आई हो, और हैविंग मैनी कलर्स, जिसमें बहुत सारे कलर्स हो. अगर कोई चीज या कोई कपड़ा बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनाए, वहां पे भी आप इसको मोटली की तरह यूज कर सकते हैं. And then it can be used as noun, a mixture especially of incongruous elements or colors. Incongruous मतलब जो एक दूसरे से मिक्स ना हो, different colors, different चीजों से जब कोई चीज मिलके बनती है या different colors से मिलके बनती है जो कि extreme contrast में होते हैं, that is called basically the motley. Okay, so collocations: motley assortment, motley bunch, motley collection, motley crowd, motley crew. Okay, so motley इन सब वर्ड से पहले आप यूज कर सकते हैं. Okay, so what can be the examples? What are the what he possesses and claims it to be ancestral heritage is nothing but motley. It means जो वो claim करता है कि ये मेरी ancestral heritage है, उसमें केवल variety of things हैं, but nothing is special. Okay? कुछ glasses हैं, कुछ कटोरियां हैं, कुछ सुराही हैं, और उनको बोलता है कि वो basically heritage है. So that is called motley. यहाँ पे motley को कैसे यूज किया गया है? Noun की तरह. Once again, कैसे यूज किया गया है? नाउन की तरह. हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमने एक आर्टिकल यहां पे यूज किया है. Now, a motley crowd was responsible for the larceny and lynching. Larceny मतलब लूटपाट, lynching मतलब किसी का कत्ल कर देना. तो motley crowd, यहाँ पे crowd एक नाउन है और नाउन को हमारा क्वालिफाई कर रहा है motley. So इसी वजह से motley यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है. So a motley crowd. आप देखिए यहाँ पे हमने कोलोकेशन में दिया भी था कि आप crowd को यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट कोलोकेशंस जो मैंने आपको यहाँ पे दी हैं, आपको क्या करना है? आपको उन कोलोकेशंस वाले वर्ड्स का यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको डालना है. ठीक है? सो मेक श्योर यू डू दिस एक्टिविटी. दिस इज द असाइनमेंट. And then comes the synonym. So synonym can be different. Again, I told you earlier also, synonyms can be used at different context only. So heterogeneous, assorted, sundry, incongruous, conglomerate. Okay? So these can be the synonyms. Let us go to the another word. Next word is corroborate. Now try to understand the pronunciation. It's not corroborate, it's corroborate. Rob के ऊपर हमें थोड़ा सा stress देना है. Corroborate. Okay? So this is a verb. Okay? इसको verb की तरह use करना है. So what is the meaning? To support with evidence or authority in order to make anything more certain. ठीक है? किसी चीज के फेवर में या किसी चीज के प्रमाण में आप कोई सपोर्ट या एविडेंस अगर वहां पे सपोर्ट अगर दे रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका कहलाता है कोरॉबोरेट. और टू मेक मोर सर्टेन और कंफर्म, या किसी चीज को और ज्यादा कंफर्म कर देना और ज्यादा पुख्ता कर देना, आपका कहलाता है कोरॉबोरेट. ओके? अदर फॉर्म्स कैन बी कोरॉबोरेशन, नाउन, देन कोरॉबोरेटर, जो कोरॉबोरेट करता है वो बेसिकली अगेन अ नाउन, देन कोरॉबोरेटरी एडजेक्टिव हो गया, एंड देन कोरॉबोरेटिव. Okay, so these are 4 different forms जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने यहाँ पे वर्ड याद किया corroborate, राइट? लेकिन इस corroborate के साथ आप 4 और वर्ड यहाँ पे याद कर रहे हैं. corroboration,
corroborator, corroboratory and corroborative. So please इसको ये मत मान के चलिएगा कि आपने केवल एक वर्ड याद किया है. आप यहाँ पे 5 words you are remembering and apart from that you are also learning some new synonyms जिनका सेम मीनिंग होता है. सो इट मींस एक ही स्लाइड में या फिर एक ही वर्ड के साथ आप कितने वर्ड्स लर्न करने हैं? 6, 7, 8, 9, 10. सो यू आर लर्निंग एटलीस्ट 10 वर्ड्स पर वर्ड. So understand this thing. Look at the wider and the broader picture and you will understand that every single day you are actually encountering with near about 100 words and this is a very, very important thing. Okay, so your vocabulary is really going to become amazing. Yeah, so what I was talking about is we were talking about the collocation now. Now let's talk about the collocation. So collocation क्या हो सकती है? Finding, report, testimony, view, evidence. यानी इस corroborate को आप कहाँ पे use कर सकते हैं? When you are corroborating a finding, किसी ने कुछ find किया, उसको आपने corroborate किया या उसको आपने support किया, किसी की report को आप corroborate कर सकते हैं, किसी की testimony को आप corroborate कर सकते हैं, किसी के view को आप corroborate कर सकते हैं और किसी के evidence को आप corroborate कर सकते हैं. ठीक है? So corroborate के collocation यहां पे आप यूज कर सकते हैं. एग्जांपल्स: द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज corroborated by 2 other witnesses. यानी 2 और लोगों ने उसके जो एविडेंस था उसको corroborate किया यानी उसको और ज्यादा कंफर्म कर दिया. His valid arguments corroborate his claims of being an eloquent orator. यानी उसके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो और ज्यादा ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है या और ज्यादा इस चीज को वैलिडेट कर देते हैं कि वो एक अच्छा स्पीकर है. ठीक है. सिनोनिम्स कैन बी कंफर्म, सब्सटेंशिएट, वेरीफाई, ऑथेंटिकेट एंड अटेस्ट. नाउ व्हाट इज द वर्ड हिस्ट्री? सो वर्ड हिस्ट्री इज लैटिन corroboratus. लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना और कॉर का मतलब होता है टुगेदर, रोबर का मतलब टू मेक स्ट्रॉन्ग. जब दोनों मिलके, 2 चीजें मिलके एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द corroboration. ओके, सो ये आपका बेसिकली वर्ड हिस्ट्री हो गई. लैटिन और लैटिन वर्ड है ये, लैटिन से इसकी हिस्ट्री मतलब लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है. तो दिस कैन गिव यू एन आइडिया, दिस कैन पैक इट इनटू योर मेमोरी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ. सो द नेक्स्ट वर्ड इज asunder. Asunder. Okay, the next word is asunder. Asunder का मतलब क्या होता है? asunder के प्रोनाउंसिएशन में सन जो है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है. This is an adverb into separate parts or into different pieces. अब तक हम ऐड करने वाले वर्ड्स देख रहे थे. Now we are looking at some words which are separating, right? So asunder means किसी चीज को सेपरेट करना या किसी चीज को सेपरेट पार्ट्स में तोड़ देना, right? Example: The very fabric of our constitution was torn asunder with the proclamation of emergency. यानी emergency के proclamation के साथ ही हमारे जो constitution का fabric था या हमारे constitution की जो spirit थी, that was torn asunder. Asunder मतलब उसको तोड़ दिया गया, उसको pieces में बांट दिया गया. Nobody can put asunder the faith of true believer. यानी जो एक true believer होता है उसकी faith को कोई भी तोड़ नहीं सकता, right? सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे हमने torn asunder यूज किया, यहाँ पे हमने put asunder यूज किया. ठीक है, ये एडवर्ब है तो इसको वर्ब के साथ ही यूज किया जा सकता है. बिना वर्ब के आप इसको यूज जनरली नहीं करते हैं. ठीक है, तो समझिएगा torn asunder मतलब ये asunder जो है ये torn को क्वालिफाई कर रहा है. इसी तरीके से यहाँ पे asunder जो है वो put को क्वालिफाई कर रहा है. So this is an adverb. Adverb थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं यूज करने क्योंकि इनका हम सही तरीके से समझ नहीं पाते कि इनको यूज कैसे करना है. अगर हम समझ जाएं तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हैं. आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंसेस में फिट कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव बना सकते हैं. ठीक है, सो सिनोनिम क्या होगा इसका सिनोनिम बेसिकली आपका होगा अपार्ट. किसी चीज को टोर्न अपार्ट, टीयर अपार्ट कर देना या किसी चीज को तोड़ देना, मतलब दैट इज बेसिकली द asunder का मतलब 2 पार्टों में तोड़ देना, वो बेसिकली आपका कहलाता है. इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. वर्ब नहीं है, तोड़ना नहीं, जो तोड़ने का तरीका है, बेसिकली तोड़ने का तरीका जो है वो आपके asunder को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, torn asunder मतलब 2 पार्ट में तोड़ देना, put asunder मतलब अगेन 2 पार्ट में तोड़ देना. दैट इज बेसिकली यूज्ड. नाउ लेट अस कम टू द अनदर वर्ड. द अनदर वर्ड इज डायस्पोरा. डायस्पोरा. सो डायस्पोरा बेसिकली यहाँ पे AS के ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. ये एक नाउन है डायस्पोरा. ओके, डायस्पोरा इज अ नाउन. डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्प्रेड फ्रॉम द वन ओरिजिनल कंट्री टू अनदर कंट्री.
ऐसे लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वो बेसिकली वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। ओके, इसी तरीके से डिस्पर्शन ऑफ लैंग्वेज और कल्चर, जो आपकी लैंग्वेज और कल्चर का डिस्पर्शन होता है एक जगह से बहुत सारी जगहों पे, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायस्पोरा। एंड देन द डिस्पर्शन ऑफ ज्यूज इन 6th century BC व्हेन दे वर एक्साइल्ड टू बेबीलोनिया, ज्यूज लिविंग आउट ऑफ इजराइल। यानी ये वर्ड ओरिजिनली यहीं से आया था, जो ज्यूज लोग थे जब वो उनको बेबीलोनिया में एग्जाइल दे दिया गया था, या व्हेन दे वेंट फॉर द एग्जाइल इन द बेबीलोनिया, सो दोज पीपल आर कॉल्ड द डायस्पोरा। और स्टिल टुडे ज्यूज लिविंग आउटसाइड द Israel are also known as diaspora. Okay, so these are the three words, these are the three meanings which you can actually use. Examples: the Indian diaspora. Indian diaspora मतलब ऐसे इंडियंस जो इंडिया से बाहर जाके बस गए हैं, living outside their homeland to favor the Prime Minister नरेंद्र मोदी। यानी ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर जाके बस गए हैं, वो लोग भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करते हैं। In the same way, the diaspora continued even long after the World War II. तो ये जो डायस्पोरा है, ये बेसिकली डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो लोगों का, ज्यूज लोगों का जो जाना था, जगह छोड़ के जाना जो था, वो बेसिकली उस समय भी जारी रहा जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो आपने डायस्पोरा यूज किया है, ये एक प्रोसेस के लिए यूज किया है, द डायस्पोरा कॉन्टिन्यूड, राइट। एंड यहाँ पे जो आपने यूज किया है, ये बेसिकली आपने एक नाउन की तरह यूज किया है, द इंडियन डायस्पोरा। यानी यहाँ पे आपने ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, या फिर ये समझ लीजिए कि आप एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, बट यहाँ पे ये आपने एक प्रोसेस की तरह यूज किया, जिसको हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं, द डायस्पोरा कॉन्टिन्यूड। ओके, सिनोनिम, व्हाट कैन बी द सिनोनिम? द सिनोनिम कैन बी एक्सोडस एंड डिस्पर्शन। ओके, नाउ हिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड डिस्पर्शन से आया है, डायस्पोरा जो बना है, और बेसिकली ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए यूज किया गया था जो ज्यूज जो थे, वो बेसिकली जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे उनको एग्जाइल दिया गया था, या फिर जब उनको बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट इज द वर्ड क्लीव। ओके, द वर्ड इज क्लीव। क्लीव इज अ वर्ब, क्लीव इज अ वर्ब। और ये जो क्लीव है, इस क्लीव को आप दो डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इंटरेस्टिंग वर्ड इस वजह से है क्योंकि इसके एक ही साथ दो ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है। तो पहला जो इसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्लीव, क्लोव एंड क्लीव्ड, और क्लेफ्ट भी यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं बताऊंगा। क्लीव्ड और क्लेफ्ट में अंतर है, मैं अभी बताता हूं आपको। तो पहला जो मीनिंग है वो है क्लीव समथिंग थ्रू समथिंग, या आप इसको हमेशा समथिंग के साथ जनरली यूज करते हैं, या फिर थ्रू समथिंग के साथ यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टू स्प्लिट और कट समथिंग इनटू यूजिंग समथिंग शार्प और हैवी। और दूसरा मीनिंग होता है टू मूव क्विकली थ्रू समथिंग। यानी जब आप किसी शार्प चीज से किसी को काट रहे हैं दो पार्ट्स में, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लीव। दूसरा मीनिंग इसका यही होता है जब आप किसी चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी जंगल के थ्रू गुजर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी चीज को काटते हुए या किसी चीज को फाड़ते हुए गुजर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लीव। ओके, एंड द सेकंड मीनिंग विच इज जस्ट ऑपोजिट, क्लीव टू समथिंग और somebody का मतलब होता है किसी से चिपक जाना, टू रिमेन फेथफुल और टू रिमेन फेथफुली, और यूजुअली फॉलोड बाय, दिस इज यूजुअली फॉलोड बाय टू। इसके बाद हम टू लगाते हैं। जब आप किसी से चिपक जाते हैं क्लोजली, या किसी को फेथफुली फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी आप क्लीव का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। एक का मीनिंग है स्प्लिट, दूसरे का मीनिंग है स्टिक, ठीक है। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बार ध्यान से समझिएगा, जब आप क्लीव को सेकंड मीनिंग की तरह यूज कर रहे हैं, यानी सेकंड मीनिंग के सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्लेफ्ट होता है, और जब आप पहले वाले की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्लीव्ड होता है, ठीक है। लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, द वे ही वाज क्लीविंग थ्रू द ट्रैफिक वाज इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट, यानी जिस तरीके से वो ट्रैफिक को चीरता हुआ निकल गया, ठीक है, वो ये दिखाने के लिए काफी था, मतलब वो दिखाने के लिए काफी था कि वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। द वे ही वाज क्लीविंग थ्रू द ट्रैफिक वाज इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ स्किल्ड अ ड्राइवर ही वाज। सॉरी, मैंने पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा। हाउ स्किल्ड अ ड्राइवर ही वाज, यानी जिस तरीके से वो ट्रैफिक को चीरता हुआ निकल गया, उससे ये बात क्लियर हो गई कि भैया वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। इसी तरीके से his skin was cleft with deep lines due to sunburn। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है। ये जो क्लीव्ड, ये जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, दीज आर टू एंटायरली ऑपोजिट। पहले वाले के लिए आप क्लेफ्ट यूज करते हैं और दूसरे वाले के लिए आप
क्लीव्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लेफ्ट है, वो क्लेफ्ट का मतलब फटी हुई, जैसे आपने देखा होगा ना जो होठ फट जाते हैं या फिर आपकी जो स्किन होती है वो क्रैक हो जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लेफ्ट यूज कर रहे हैं। एंड देन अगेन his ex put a cleft in their harmonious relationship, यानी उनके हार्मोनियस रिलेशनशिप में उसका जो एक्स था उसने आके एक दरार या उसने आके एक टकरार पैदा कर दी, उसके अंदर एक क्रैक आ गया उसके रिलेशनशिप में। इसी तरीके से he is cleaved to the idea of nationalism। अब देखिए क्लीव्ड टू आइडिया, क्लीव्ड किसके लिए यूज करते हैं, जिस समय आप स्टिक करते हैं किसी से, राइट। सो ही इज क्लीव्ड टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी वो नेशनलिज्म के आइडिया से चिपका हुआ है। I hope you are getting my idea. ठीक है, so this is called cleave. Okay, so the next word is the last word of today is disseminate. Disseminate एक verb है, ठीक है। यहाँ पे sem के ऊपर हम बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं। disseminate, disseminate का मतलब क्या होता है, to scatter और spread widely, किसी चीज को scatter कर देना या बहुत दूर दूर तक फैला देना। and then promulgate extensively, ठीक है। इसका मतलब भी एग्जैक्टली वही होता है, किसी चीज को स्कैटर कर देना या किसी बात को बहुत ज्यादा फैला देना, ठीक है। सो डिसेमिनेशन आपका अनदर इसका फॉर्म हो सकता है, डिसेमिनेटिव हो सकता है, डिसेमिनेटर हो सकता है। द वन हु डिसेमिनेट इज कॉल्ड डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटिव मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जो डिसेमिनेट करता हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डिसेमिनेट करता हो। एंड डिसेमिनेशन इज अगेन अ प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोलोकेशन, इंफॉर्मेशन और मैसेज, यानी आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं, मैसेज को डिसेमिनेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स, एम्परर अशोका वाज रिस्पांसिबल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ बुद्धिज्म इन एंटायर वर्ल्ड। पूरे संसार में बुद्धिज्म को फैलाने का जो क्रेडिट जाता है, ही वाज अशोका वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। A true leader disseminates compassion, not fear. जो true leader होता है वो डर नहीं फैलाता है, वो compassion फैलाता है, ठीक है। वो compassion को disseminate करता है। Synonyms can be circulate, disperse, propagate. ओके, हिस्ट्री और ओरिजिन ये लैटिन वर्ड से आया है, जहां पे इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है सो मतलब बोना, किसी चीज को बोना। जब आप किसी चीज को बोते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को बो रहे होते हैं तो आप बीजों को फैलाते हैं, ठीक है। तो वहां से ये डिसेमिनेशन का प्रोसेस आपका बन के आया। Alright, so this is the summary. Amalgamation, admixture, eclectic, Catholic, motley, corroborate, asunder, diaspora, cleave, disseminate, ये सारे वर्ड्स आज हमने किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इस स्लाइड पे थोड़ा सा रुक के अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, कितने वर्ड्स को आप समझ पाए हैं, कितनों को नहीं समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं देन गो बैक टू द वीडियो, ट्राई टू फाइंड आउट दैट वर्ड अगेन एंड just get back to the main process. So again, I would like to tell you, my dear students, a journey of 1,000 miles start from a single step toward it. You are taking every single step every single day. So make sure you are continued with that. You are actually consistent with it. Okay? Consistency, discipline, and practice. You should be consistent. You should be disciplined, and you should keep practicing. Only then these 100 days will make you an amazing communicator. Okay? But yes, I can guarantee you it will surely happen. So now what I want to say is, if you haven't subscribed the channel, my dear friends and my dear students, make sure that you subscribe the channel so that you can keep on getting the links, you can keep on getting the notifications for the videos. Apart from that, you can join the WhatsApp channel, the Telegram channel. The links are given in the description box. Also, please attempt the quiz. उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपके फ्लैश कार्ड्स का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपके पॉडकास्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसे आप रिवाइज कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, यू ट्राई टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेप्स। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर लर्निंग। आई बिलीव दैट वी टुगेदर आर गोइंग टू मेक एन अमेजिंग सक्सेस and we are going to become amazing communicators. All the best. Let us see together. Let us get together tomorrow once again for the day 3. Thank you so much.